નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 15 ઓગસ્ટ 2021 ભારત જ્યારે એનો સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવી રહ્યું હતું ત્યારે બિલકુલ કોઈ પણ પ્રકારની સામના વગર જાણે બગાસું ખાતા મોંમાં પતાસું આવી જાય તે રીતે તાલિબાન કાબુલ પર કબજો જમાવી અને અફઘાનિસ્તાન ઉપર કબજો જમાવ્યો. એને તાલિબાનનું રાજ તો આવ્યું, અફઘાનિસ્તાનમાં એની સત્તા વાપસી થઈ, પણ એની અસર ભારત અને દક્ષિણ એશિયાની રાજનીતિ પર શું થશે એ હજુ પણ કળી નથી શકાતું. કારણ કે આટલા દિવસો થવા છતાં પણ હજુ તાલિબાન સરકાર બનાવી શક્યું નથી. પંજશીરમાં તાલિબાનને કબજો કર્યાની વાત કરે છે, પણ એ દાવાને પણ પડકારવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સત્તાની એક નવી ધરી ઊભી થઈ છે. તાલિબાન સાથે પાકિસ્તાનના સંબંધો ઘણા મજબૂત છે. ઇમરાન ખાનના એક મંત્રીએ તો ઉત્સાહમાં આવી ત્યાં સુધી કહી નાખ્યું કે તાલિબાન કાશ્મીરને જીતીને પાકિસ્તાનને સોંપી દેશે. આ પરિસ્થિતિમાં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન રાજ સ્થપાય ત્યારે ચીન અને પાકિસ્તાન મુખ્ય ભૂમિકામાં આવી જાય તે બાબત ભારત માટે મોટી ચિંતાનો વિષય છે. તાલિબાન એકલું સરકાર રચવા માંગતું નથી, જેથી સરકારની વિશ્વસનીયતા જળવાઈ રહે. સાથોસાથ અફઘાનિસ્તાનના તમામ પક્ષોના પ્રતિનિધિઓને લઈને સંયુક્ત સરકાર રચવાનો, મહિલાઓનું સશક્તિકરણ તેમજ અન્ય બાબતોમાં કરેલી જાહેરાતનો અમલ એટલી સરળતાથી થઈ શકે તેમ નથી. અફઘાનિસ્તાનમાં લોખંડ, તાંબુ, નિયોબિયમ, સોનું, મોલિબ્ડેન અને અન્ય ખનિજ સમૃદ્ધિ છે. આ ખનિજ સંપત્તિ ઉપર સ્વાભાવિક રીતે ચીનની નજર પડી છે. અફઘાનિસ્તાનમાં પૂરતી આંતરમાળખાકીય સવલતો નથી અને એટલે ખનન એટલે કે ખાણકામ એ સંગઠિત ઉદ્યોગ કે ઔપચારિક ઉદ્યોગ નથી. આ વિકસાવવું હોય તો ઘણી મોટી આંતરમાળખાકીય સવલતો ઊભી કરવી પડે અને લગભગ એકડે એકથી કામ શરૂ કરવું પડે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા અનુસાર 2020માં તાલિબાને ગેરકાયદેસર ખનનથી 3,480 કરોડ રૂપિયા મેળવ્યા. અમેરિકાના અંદાજ મુજબ અફઘાનિસ્તાનની ધરતીમાં દરબાયેલ ખનિજોના વિપુલ ભંડારોનું મૂલ્ય 2010ની સ્થિતિએ 75 લાખ કરોડ હતું, જે હવે વધીને 3 ગણું થઈ ચૂક્યું છે. આ ખનિજો ઇલેક્ટ્રિક કાર, મોબાઈલ ફોન, ટીવી, કમ્પ્યુટર અને બેટરી બનાવવામાં મોટે પાયે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઇલેક્ટ્રિક કાર, સ્માર્ટફોન અને લેપટોપની બેટરીમાં વપરાતા લિથિયમની વૈશ્વિક માંગ વાર્ષિક 20%ના દરે વધી રહી છે. આ બધા કારણોસર ચીન, રશિયા, પાકિસ્તાન અને ઈરાન અફઘાનિસ્તાનમાં રસ લેશે. અત્યારના સંયોગો જોતા એવું લાગે છે કે આ બધી દોડમાં ચીન અફઘાનિસ્તાનમાં સૌથી મોટું રોકાણકાર તરીકે ઉપસી આવશે. બીજી બાજુ અફઘાનિસ્તાનની આશરે 4 કરોડની વસ્તી સામે ભૂખમરાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના કહેવા મુજબ દેશના અડધાથી વધુ બાળકો 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે, જે સૌથી વધુ કુપોષિત છે. અફઘાનિસ્તાન ઉપર ખાદ્ય અસુરક્ષાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ભારતને લાગે છે ત્યાં સુધી ભારતે અલગ અલગ સમયે અફઘાનિસ્તાનને 21,000 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદ આપવાનો વાયદો કર્યો છે. ભારત અફઘાનિસ્તાનના 34 પ્રાંતમાં 13 મોટી યોજનાઓ પર કામ કરી રહ્યું હતું, જેનું ભાવિ હવે અદ્ધરતાલ છે. અફઘાનિસ્તાનમાં સત્તા પલટો થયો અને તાલિબાને કાબુલ પર કબજો કર્યો. હજુ તાલિબાનની સરકાર રચાઈ નથી. જ્યારે જ્યારે એ અંગે કંઈ પણ પૂછા થાય ત્યારે 2-3 દિવસનો વાયદો અપાય છે. દરમિયાનમાં ત્યાંના હક્કાની ગ્રુપ જેવા કેટલાક ઉગ્રવાદી ગ્રુપો
સાથે હજુ તાલમેલ બેસતો નથી. આ પરિસ્થિતિમાં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની શાસન આવવાનું એની શું અસર ભારતના હિતો પર થશે અને એની શું અસર આ ભૂખંડ પર એટલે ભારત અને દક્ષિણ એશિયાની રાજનીતિ પર થશે તે અંગેની ચર્ચા આપણે આજે કરવી છે. અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી પાસે બહુ જેને આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત કહી શકાય એવા સુધીન્દ્ર કુલકર્ણીજી આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાવાના છે. સુધીન્દ્ર કુલકર્ણીજી કોઈ પણ ગુજરાતી ચેનલ પર પહેલીવાર જોડાય છે. આજ સુધી તેઓએ ગુજરાતી ચેનલ પર ગુજરાતી ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયમમાં કોઈ પણ ચર્ચામાં भाग લીધો નથી. એટલે गुजरात समाचार टेलीविजन के लिए सुधींद्र जी हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आपका परिचय दे तो सुधींद्र जी राजकीय विचारक, पत्रकार और पत्रकारित्व और राजनीति से जुड़े हैं. बेलगाम जिले में जादव जी आनंद जी हाई स्कूल अठानी उन्होंने अपना अभ्यास किया और एक कोइंसिडेंस है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है IIT मुंबई से उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, जो संस्था का मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूं. इसी एक खास हैसियत से सुधींद्र जी मैं आपका स्वागत करता हूं बिकॉज वी आर द अलुमनीज ऑफ IIT मुंबई. सही बात है. 1996 में सुधींद्र जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े. उसके पहले कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे, मगर उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट विचारधारा से हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं जुड़ता है और वो सुडो सेक्युलरिज्म की बातें करते रहते हैं. तो वहां से फिर उन्होंने अपना तार भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा. भारतीय जनता पार्टी में जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन हुआ अटल जी के समय में, उनके एक आर्किटेक्ट गिनो, विचारधारा के प्रवर्तक गिनो तो सुधींद्र जी उनके साथ जुड़े हुए थे. उसके पहले अटल जी जब पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की मुलाकात पे गए, जो बस उसमें सुधींद्र जी भी सवार थे. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काफी निकट से काम किया है. दिल्ली लाहौर बस सेवानी पहली ट्रिप में, यानी कि पहली जो ट्रिप दिल्ली लाहौर के लिए गई उसमें अटल जी के साथ सुधींद्र जी भी गए थे, जो मैं कह चुका हूं. 2008 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के व्यूहरचनाकार की बहुत अहम भूमिका सुधींद्र जी ने निभाई थी. 2009 में भारतीय जनता पार्टी में से वैचारिक कारणों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से 2012 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के सलाहकार की हैसियत से वो फिर भाजपा में सक्रिय हुए. 2019 की जो चुनाव हुए उसमें सुधींद्र जी ने राहुल गांधी को देश के वड़ा प्रधान पद के लिए उत्तम उम्मीदवार की हैसियत से अपना सपोर्ट दिया. ब्लिट्स प्रकाशन के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं. हिंदुजा ग्रुप के साथ भी उन्होंने काम किया है. श्रीचंद हिंदुजा जी के साथ भी उन्होंने काम किया है और खास करके जो भी उनके समय दरमियान श्रीचंद हिंदुजा जी के स्पीच वगैरह आए उनके पीछे सुधींद्र जी की विचारधारा काम करती रही. हिंदुजा ग्रुप का एक विचार था कि एक इंटरनेशनल कक्षा का एक अखबार यहाँ लॉन्च किया जाए, जो किसी संयोगवशात शक्य नहीं हुआ. बट मगर सुधींद्र जी कहीं न कहीं ब्लिट्स हो या हिंदुजा ग्रुप हो या फिर अटल जी या आडवाणी जी के लिए व्यूहरचनाकार की भूमिका में भी उनके लिए कोई स्पीचेस वगैरह तैयार करना हो, राइटअप तैयार करना हो, कहीं न कहीं इसके साथ जुड़े रहे. एक इंजीनियर होने के नाते हमारी IIT के इंजीनियर्स जो बाहर निकलते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा
तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में चला जाता है। और आज भी जो सुंदर पिचाई से लेकर कई लोग जो फॉर्च्यून 500 कंपनी से जुड़े थे, उनमें हमारे आईआईटी के पास आउट का अहम हिस्सा रहता है। सुदीन जी ने वो नहीं पसंद किया, उन्होंने पत्रकारिता और राजनीति पसंद की। मैं मानता हूं कि एक अच्छी बात हुई, क्योंकि इस तरह के विचारधारा से जुड़ने वाले लोग और इस तरह की संस्था से निकल के आने वाले लोग जब राजनीति में जाते हैं तो अपनी खुद की एक अलग पहचान खड़ी करते हैं और अपने खुद के विचारों के को एक तरह से आर्टिकुलेट करके रखने में वो माहिर होते हैं। सुदीन जी, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अफगानिस्तान में जो भी हुआ है, और आप ये विषय को काफी नजदीक से देखने वाले जो एक्सपर्ट्स है उनमें से एक है। तालिबान की सत्ता तो 15 अगस्त को आई, मगर तालिबान आज तक वहां सरकार नहीं बना पा रही है। और एक बात ये भी हुई कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो और एंथुसियाज्म में आके ये भी कह दिया कि अब तालिबान हमारे लिए कश्मीर जीत के हमको देगा। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है और एक धरी जो बनी है, एक एक्सिस बनी है, ईरान, चीन, रशिया और पाकिस्तान की, ये सबकी वजह से क्या लगता है आपको भारत के हितों को और ये जो भूभाग है उसमें जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उसमें क्या फर्क आएगा? क्या मानना है आपका? सबसे पहले डॉक्टर व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार मैं गुजराती टेलीविजन पर आ रहा हूं जी, और यह मौका आपने मुझे प्रदान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। गुजरात की पावन भूमि को मैं नमन करता हूं। गुजरात के प्रबुद्ध जनता को मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। गुजरात के प्रति मेरे मन में बहुत प्यार है, लगाव है, श्रद्धा है, क्योंकि गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है, सरदार पटेल की भूमि है, नरसिंह मेहता जैसे संतों की भूमि है। और मैं और एक नाम जोड़ना चाहता हूं, राष्ट्र कवि, क्रांतिकारी कवि झवेरचंद मेघानी जी, जिनका 125th बर्थ एनिवर्सरी का साल चल रहा है। मैं इन सबको नमन करना चाहता हूं और गुजरात के मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, तमो सौने मारा नमस्ते। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना अत्यावश्यक है। क्यों तालिबान अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रदेश में, सभी टेरिटरी पर अपना कब्जा ले पाया? यह बात सही है कि अभी तक वहां सरकार नहीं बनी है, लेकिन सरकार बनेगी, कुछ दिनों की बात है। लेकिन यह क्यों हुआ, यह समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के 40 साल के इतिहास को देखना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान वह एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मुल्क है जो भारत के सिविलाइजेशनल फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन 40 साल से लगातार वहां युद्ध और कलह चलता आ रहा है। पहले सोवियत रूस ने आक्रमण किया, कब्जा किया, 10 साल एक भयानक युद्ध चला, लेकिन आखिरकार सोवियत रूस को वापस जाना पड़ा, वो हार गया। यानी अफगानिस्तान की जनता ने एक महाशक्ति को हराया और भागने के लिए मजबूर किया। उसके बाद एक दूसरी महाशक्ति आई, अमेरिका। 2001 से 2021 तक 20 साल तक युद्ध हुआ, ऑक्यूपेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ,
और इस युद्ध पर हम सब जानते हैं, ये पूरे अमेरिकी मीडिया ही कह रहा है कि इस पर $1 ट्रिलियन खर्च किया गया। $1 ट्रिलियन यानी 70 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अमेरिका को मिला क्या? लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। जैसे आपने प्रारंभिक अपनी टिप्पणी में कहा कि आज भी वहां गरीबी है। 70% लोग वहां गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं। यानी 70 लाख करोड़ रुपया खर्च करके भी अफगानिस्तान में कोई आर्थिक सामाजिक बदलाव नहीं आया। तो मेरा कहना यह है कि आज जो हुआ है, 2 महाशक्तियों को हराना, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले अफगानिस्तान के जनता को अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी धरती के आजादी के लिए और स्वामित्व के लिए, यानी सॉवरेनिटी के लिए उन्होंने जंग लड़ी, कुर्बानी दी और आखिरकार वो विजयी हुए हैं। तो इसलिए हमारे सिविलाइजेशनल पड़ोसी होने के कारण हम उनके आज इस विजय में हम उनके साथ हैं। हम सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए। अब यह भी बात सही है कि तालिबान इस जंग में दोनों महाशक्तियों के खिलाफ जंग में वो आगे था, लेकिन तालिबान की उसका एक दूसरा चेहरा भी है। वो इस्लामी कट्टरवाद, फेनेटिसिज्म के शिकार होने के कारण वह अपना एक दूसरा राज चलाने की उन्होंने कोशिश की 1996 से 2001 तक। अब हमें देखना होगा कि तालिबान का नया चेहरा क्या होगा। अब उनके कथनी में कुछ बदलाव आया है। वो कहते हैं कि वो दुनिया के सभी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ता बनाना चाहते हैं, भारत के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। हमने देखा है कि 4 दिन पहले दोहा में पहली बार भारत सरकार ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है। और इस बातचीत में, कतर दोहा के बातचीत में, अफगानिस्तान के यानी तालिबान के जो एक वरिष्ठ नेता है स्टानिकजाई, उन्होंने वादा किया है कि हम अफगानिस्तान की धरती को टेररिज्म के लिए, किसी मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यह एक पॉजिटिव एश्योरेंस है। तो कथनी है, अब करनी क्या होगा इसके बारे में हमें सजग रहना होगा। वी हैव टू बी विजिलेंट। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब तालिबान को चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और तो और अमेरिका भी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और शायद कुछ सप्ताह के बाद जब सरकार बनेगी तो रिकॉग्नाइज भी करेंगे, मान्यता भी देंगे। और मेरा कहना है कि भारत को भी इस तालिबान लेड गवर्नमेंट, ये केवल तालिबान का नहीं होगा, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा, भारत को भी मान्यता देनी पड़ेगी। तो इसलिए आज जो हो रहा है इसके 2 चेहरे हैं। इन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स को हमें देखकर अपनी नीति बनानी होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें जो भी करना है, ये हमारे जो विदेश नीति है वो अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है और वो ही करेंगे हम। मगर जिस तरह से अफगानिस्तान में अभी पाकिस्तान के अल-कायदा, पाकिस्तान प्रेरित आईएस वगैरह जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? उनको काबू में कर सकेंगे? काबू में करने के बाद जो इनके वचन है कि हमारी धरती को कोई आतंकवाद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसमें वो जो इनका प्रॉमिस है वो पूरा करने में सफल रहेंगे? डॉक्टर व्यास जी, हमें आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा।
पहली बात, अफगानिस्तान के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, वो स्वातंत्र्य प्रिय लोग हैं, फ्रीडम लविंग नेशन, फ्रीडम लविंग पीपल। जो मुल्क सोवियत रूस का प्रभुत्व ठुकरा दिया, जो मुल्क अमेरिका का प्रभुत्व डोमिनेशन को ठुकरा दिया, क्या वह मुल्क पाकिस्तान का वर्चस्व डोमिनेशन स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। और यदि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा, तो आप मान लीजिए कि अफगानिस्तान के लोग और तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि मैं अफगानिस्तान 2 बार जा चुका हूं, अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति प्यार नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति बहुत गुडविल है, बहुत लगाव है, भारत के प्रति एक आदर की भावना है जो पाकिस्तान के बारे में नहीं है। और यदि ये हक्कानी नेटवर्क हो या और भी आईएसआई हो, यदि वो कोशिश करने लगेंगे कि अब रूस भी गया, अमेरिका भी गया, अब हमारा जमाना शुरू होगा, तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। इट विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान। ये पहली बात है। और दूसरी बात देखिए, इन्हें 20 साल के जंग के बाद अब उनको अफगानिस्तान में हुकूमत चलाने का मौका मिला है। यदि वो फिर से वो अलकायदा हो या जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तोयबा हो या आईसिस हो जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को वहां पैर रखने के लिए वो देंगे, तो क्या उनकी हुकूमत 6 महीने के लिए भी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इसका कारण है कि आज अफगानिस्तान के जो पड़ोस के मुल्क हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, इंडिया भी है, सभी को उनकी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन अफगानिस्तान से और तालिबान से, बेसिक एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि अफगानिस्तान की धरती इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के लिए और टेररिज्म के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आपने चाइना का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि चाइना आज शिनजियांग प्रदेश में, प्रोविंस में, जो एक मुस्लिम बहुल प्रदेश है, वहां अलगाववादी सेपरेटिस्ट लोगों के खिलाफ, एक्सट्रीमिस्ट लोगों के खिलाफ वो बहुत बड़ा एक जंग चला रहा है, मुहिम चला रहा है। क्या चाइना चाहेगा कि पड़ोस के अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट टेररिज्म फिर से पनपे? बिल्कुल नहीं। रशिया के इर्द गिर्द तो सभी इस्लामिक मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिया। तो क्या रशिया चाहेगा कि इन सभी जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं वहां फिर से एक्सट्रीमिज्म अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्या ईरान चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक सुन्नी फैनेटिकल हुकूमत आ जाए जो शियाओं के खिलाफ अत्याचार करना शुरू करे? तो अब रही बात पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान ने एक भस्मासुर को पैदा किया। उन्होंने सोचा कि अब अफगानिस्तान पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में पाकिस्तान अपने आप स्वयं टेररिज्म का शिकार बना। हम जानते हैं कि जैसे पेशावर में 126 स्कूल के बच्चे टेररिस्ट अटैक में मारे गए, और ये सब बच्चे आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे थे। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान के 60,000 सैनिक मारे गए हैं। तो क्या पाकिस्तान भी चाहेगा कि वहां टेररिज्म फिर से सब पनपे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज एक ऐसी स्थिति बनी है, अमेरिका हो, रूस, चाइना, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, हम सब की एक कॉमन कंसर्न बनी है कि अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म हो, टेररिज्म मुक्त अफगानिस्तान हो। तो इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं
कि कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का गुलाम नहीं बनेगा। जी धन्यवाद सुदीन जी। मैं आऊंगा लौट के फिर आपके पास। रुकना पड़ेगा मुझे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, फिर हमारी जो चर्चा है चालू रहेगी। धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર તાલિબાન, અફઘાનિસ્તાન અને એના કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગેની ચર્ચા આગળ વધારીશું આપણે, અને એ ચર્ચાને આગળ વધારતા જઈશું ફરી પાછા સુધીનજી પાસે। દર્શક મિત્રો, મૂળ વાત એ છે કે 56 ઇસ્લામિક દેશોમાંથી પાકિસ્તાન સિવાય કોઈ તાલિબાનની સાથે નથી। મલેશિયા અને ઇન્ડોનેશિયા જેવા ઇસ્લામિક દેશો તાલિબાનની કટ્ટરતાને સ્વીકારતા નથી। ખાડીના દેશોમાં એક કતાર બાબતે હજુ સ્પષ્ટતા નથી થતી। બાકી બધા દેશો તાલિબાનનું સમર્થન કરવાનો ઇનકાર કરી ચૂક્યા છે। જોકે યુનાઇટેડ અરબ એમિરાત અને સાઉદી અરેબિયા જેવા મુખ્ય દેશો અમેરિકાની અસર હેઠળ છે, એટલે ખુદને તાલિબાન વિરોધી ગણાવતા રહેશે। રશિયા અને ચીન ધર્મની રીતે નહીં પણ પોતાના રાજકીય હિત ખાતર તાલિબાનને નારાજ નહીં કરે। અફઘાનિસ્તાનમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું વિદેશી રોકાણ ચીનનું છે। તો હવે શું થશે તે અંગેની વાત આપણે સુધીનજી પાસેથી જાણીશું। सुधीन जी, ब्रेक के बाद पुनः आप चर्चा में जुड़े, आपका स्वागत है। मैं आपसे दो प्रश्न अहम लगते हैं मुझे पूछना चाहूंगा। एक जो है वो इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसमें से दोहा को छोड़ के, कतार को छोड़ के किसी ने ओवरटली इनको तालिबान को मान्यता नहीं दी, न मान्यता देने की बात अभी की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब तो अमेरिका जो करेगा वही शायद करेंगे, ऐसा उनकी इन्फ्लुएंस के नीचे है। इंडोनेशिया और मलेशिया वो कट्टरतावाद को समर्थन नहीं देते, इसीलिए इनके साथ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हमारी बात सोचे तो हम चाबहार को लेकर बहुत बड़ी कल्पनाएं कर रहे थे। ईरान में हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, ईरान में हम रेलवे की बात कर रहे थे। अब ये सब चीजों के जरिए हम अफगानिस्तान से भी लैंड रूट से आगे और देशों के साथ संपर्क बनाना चाह रहे थे, मगर इस शबहार की बात तो अभी करीब करीब टूट चुकी है। और ईरान के साथ के बाकी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो भी अभी कोई खास उसमें हो ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो इस परिस्थिति में जो हमारी योजनाएं थी कि हम शबहार को गदर के कंपैरिजन में अगर उसके काउंटर पार्ट की हैसियत से डेवलप करेंगे और हमारा लैंड रूट से व्यापार इन लोगों के रशिया और उनके देशों के साथ कायम होगा, तो अब परिस्थिति बदली हुई परिस्थिति में आपकी मान्यता क्या है, क्या होगा इसमें? डॉक्टर व्यास जी, सब मुल्क सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अफगानिस्तान के साथ भविष्य में, तालिबान हुकूमत के साथ भविष्य में कैसा रुख हो ये तय करने वाले हैं। भारत को भी तय करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, लगभग सभी मुल्क तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है। अमेरिका ने तो 2013 से शुरू किया। 2013 में दोहा में उनकी बातचीत शुरू हुई, 2020 में एग्रीमेंट हुआ उन दोनों के बीच। तो अमेरिका तालिबानी हुकूमत को मान्यता देगा। ये कुछ समय की बात है, क्योंकि अभी तक सरकार भी नहीं बनी है। लेकिन सरकार बनने के बाद आप देखते रहिए, वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, या इंडोनेशिया हो, या अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सब एक एक करके मान्यता देंगे, भारत भी देगा। आपके सवाल का एक दूसरा भाग था कि हम चाहबर
पोर्ट को लेकर हमने एक सपना देखा था, एक विजन देखा था कि हम चाहबर से, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते से हम सेंट्रल एशिया जाएंगे और रशिया तक पहुंचेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई अब बंद होगा, क्योंकि जब अफगानिस्तान के साथ, तालिबानी हुकूमत के साथ हमारे भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, यानी रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी 100% रिश्ते अच्छे होने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक शक्तिशाली मुल्क है। तालिबान भारत को अपना विरोधी नहीं बना सकता। ये अफगानिस्तान के हित में नहीं है, तालिबान के हित में भी नहीं है। तो इसलिए हमारे चाहबर के रूट से जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, विजन है, वो कोई खतरे में नहीं है। इसी तरह जैसे आपने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि भारत ने अब तक $3 बिलियन 21,000 करोड़ रुपए के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये भी खतरे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान के हित में है। तालिबान क्यों इस पर रोक लगेगा और क्यों इसको इनकम्प्लीट करेगा, इसको बंद करेगा? क्या इससे अफगानिस्तान को फायदा होगा या तालिबान हुकूमत को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं इसमें और एक नया विचार जोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप और आपके दर्शक इसको बहुत सीरियसली देखिए। हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा रास्ता खुले जो सेंट्रल एशिया और रशिया तक भी जाए, इसलिए हमने चाहबर पोर्ट को सुना है। लेकिन एक आसान रास्ता भी है। यदि हम दिल्ली, अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से पेशावर, पेशावर से काबुल, और काबुल से आगे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऐसे अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के थ्रू हम जाएं, तो ये तो आसान है। यही तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें भारत को भी एक दूरदर्शिता से देखना होगा कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि भारत सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी मिले, रशिया से कनेक्टिविटी मिले, वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी मिले, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी को फायदा हो। दो बड़े फायदे हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस बहुत, उसका भंडार पड़ा हुआ है जो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि वो भारत आए। वो भारत तब आ सकता है जब वो अफगानिस्तान से होकर, पाकिस्तान से होकर इंडिया आएगा। यदि हमारे रिश्ते अफगानिस्तान के साथ सुधरेंगे, पाकिस्तान के साथ सुधरेंगे, तो पाकिस्तान का भला है, अफगानिस्तान का भला है, हमारा भी भला है। क्योंकि हम आज वी आर डेफिशिएंट इन आवर एनर्जी सोर्सेस। हम यदि नेचुरल गैस तुर्कमेनिस्तान से आए, नेचुरल गैस ईरान से आए, तो इससे क्या हमारे देश में इंडस्ट्री पनपेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, हमारे यहां प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं? तो क्यों ना हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें। और इसलिए मेरा जो ये विचार है, शायद आपके दर्शकों को शायद ये कुछ अचंभा लगेगा या अप्रिय लगेगा, लेकिन मेरा बिल्कुल मानना है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की दोस्ती बननी चाहिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की दोस्ती बननी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो कल है, टुमारो है, इट इज अबाउट ऑल कनेक्टिविटी। यदि यूरोप पोलैंड से पोर्चुगल तक बिना किसी रुकावट से एक हो जाता है, क्यों ना हम साउथ एशिया को एक साउथ एशियन यूनियन का सपना क्यों ना देखें? क्यों इसको हम ना जोड़ें? आपने बिल्कुल सही कहा कि अफगानिस्तान में इतना मिनरल वेल्थ है, लिथियम है, रेयर अर्थ्स है। क्या वो सिर्फ चाइना को जाना चाहिए, भारत को नहीं चाहिए? तो भारत भी अफगानिस्तान के साथ अच्छी तरह से, हमारी स्मार्ट डिप्लोमेसी चलेगी, तो हम इस पूरे
जो साउथ एशिया है इसका भाग्य बदल सकते हैं। और साउथ एशिया का नेचुरल लीडर इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। अब यदि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हम सब एक हो जाएंगे तो हम तो चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ये हमारा विजन होना चाहिए। सुदीन जी, बात तो बहुत अच्छी लगती है कल्पना के तौर पे, मगर जो थॉर्न इन द फ्लैश जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और हम 370 की बात करते हैं। चाइना के साथ भी संबंध ज्यादा खटास आई ये 370 के मुद्दे पे जब कुछ निवेदन आए हमारी ओर से कि अगर वो ठीक से नहीं मानेंगे तो हम बल प्रयोग करके भी ये प्रदेश हमारे साथ जोड़ देंगे। तब से चाइना हमारे से रूठा हुआ है। तो क्या ये मुद्दों को चलते हुए आपको लगता है अभी भी जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन की बात आई, पाकिस्तान डिड नॉट परमिट अस टू यूज देयर एयर स्पेस, तो वाया ईरान होके कजाकिस्तान होके हमें इनको लाना पड़ा। ये परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये जो बातें हैं हमारी आइडियली सही है, मगर क्या ये मूर्तिमंत हो सकती है? देखिए डॉक्टर व्यास जी, इतिहास को वही लोग बदलते हैं जिनकी एक प्रबल विजन होती है और मिशन होती है, और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा के दिखाते हैं, वही इतिहास की धारा को बदलते हैं। और जब इतिहास की धारा बदलती है तो इस पूरे दक्षिण एशिया की जो भाग्य खुलेगा। दुनिया में दक्षिण एशिया एक ऐसा सिविलाइजेशनल फैमिली है, रीजन है, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वी आर ऑल वन फैमिली, फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये हम एक परिवार हैं। कुछ ऐतिहासिक कारणों से हमारे यहां कुछ प्रॉब्लम्स आई है। इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सोचना चाहिए, ताकि यहां के जो 170 करोड़ लोग और अधिकांश लोग भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी गरीबी और पिछड़ेपन से शिकार हैं, तो क्या इससे मुक्ति पाना यह हमारा फर्ज नहीं है? इसके लिए क्या हमारी एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? अब रही बात, आपने पीओके की बात कही और एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन लगभग 75 सालों में क्या हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले पाए? क्या पिछले 7 सालों में, मोदी सरकार के 7 सालों में भी क्या पीओके के 1 इंच को हम ले पाए? जब यानी बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है? क्या हम मिलिट्री जंग लड़कर पाकिस्तान को हरा सकते हैं? क्या हम चाइना को हराकर अक्साई चीन ले सकते हैं? हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। जब हम एक एक सॉल्यूशन निकाले जो विन विन हो, जो इंडिया के लिए भी विन हो, चाइना के लिए भी विन हो, भारत के लिए भी विन हो, पाकिस्तान के लिए भी विन हो, और इसमें से समस्या हल हो जाए और हम सब आगे बढ़े। नहीं तो हम 70 साल ऐसे झगड़ रहे हैं और 70 साल इसमें जाएंगे, किसका भला होगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अफगानिस्तान में नई परिस्थिति आई है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। वी ऑल कैन वर्क टुगेदर। मैं समझता हूं कि हम इस मुल्क, इस पूरे रीजन में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। ना चाइना हमारा दुश्मन है, ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारे कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो बातचीत के जरिए ही हल हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके साथ मैं काम करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम दोस्त को बदल सकते हैं, हम पड़ोसी को बदल नहीं कर सकते। पड़ोसी तो पड़ोसी रहने वाला है।
तो क्या पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध होंगे तो दोनों का फायदा होगा। और यह हो सकता है, ये आज पाकिस्तान के लोगों में भी और पाकिस्तान के हुकूमत के बहुत सारे लोगों में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इन सबको पता चला है कि हम इंडिया के साथ हमेशा के लिए हम एनिमिटी, शत्रुत्व नहीं कर सकते। इंडिया के साथ पीस होना चाहिए। आप कृपया जनरल बाजवा के इन्हीं दिनों के आप स्पीचेस पढ़िए। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम अभी पुराने बातों छोड़िए, हम एक नया रास्ता निकलना चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तो क्या इसके लिए should we not talk to them? We are prepared to talk to Taliban. Why shouldn't we talk to Pakistan? तो एक नई सोच चाहिए जिससे दक्षिण एशिया का एक नया इतिहास बन सकता है। सुरेंद्र जी, आप तो राजनीति से भी काफी करीब से जुड़े हुए हैं और काफी चीजें आपने ग्रीन रूम से देखी है। जिस तरह की राजकीय हलचल यहाँ है और कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व ही भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे न हो उस पर टिका हुआ है। नहीं तो अगर बर्लिन वॉल ढह सकती है, अमेरिका और क्यूबा हाथ मिला सकते हैं, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो बातचीत के जरिए हल नहीं की जाए। मैं आपकी ये तर्क से पूर्णतः सहमत हूं, मगर जिस तरह की राजनीति इस देश में चलती है, क्या लगता है आपको? अभी आप सोशल मीडिया पे ऐसे चीजों की भरमार थी कि जो लोग तालिबान से बात करने की बात कर रहे हैं वो गद्दार है, और फिर दूसरे दिन आ गया कि दोहा में भारत सरकार ने बात तालिबान से की है। तो ये जो जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह की यहाँ सोच मैं मानता हूं कि जानबूझकर खड़ी की गई है, क्या उस सोच को भेदने का कोई उपाय है? आपने एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यदि एक जटिल कॉम्प्लेक्स सवाल को हल करना है तो उसके लिए एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। और जिस नेता के पास वह विल पावर होता है वो इतिहास को बदलता है। आपने बर्लिन वॉल की एग्जाम्पल दी, ईरान अब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी आगे चलकर एक होने वाले हैं। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम एक हो गए। तो किसने सोचा था कि एक दिन निक्सन और माओ त्से तुंग के बीच समिट मीटिंग होगी? आप पीछे मुड़कर चलिए, 50 और 60 के दशकों में किसी को कल्पना भी थी कि इन दोनों में समिट मीटिंग हो जाएगी और इनकी दुश्मनी चली जाएगी और कम से कम कोऑपरेशन तो शुरू होगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास यह इच्छा शक्ति थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे स्वयं कहा, 2004 में इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यदि और एक टर्म मिला होता तो मैं कश्मीर के सवाल को मैं पूरी तरह से हल कर देता और इंडिया पाकिस्तान रिश्तों को नॉर्मलाइज कर देता। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के और मैं समझता हूं कि मोदी जी भी कुछ हद तक उसी रास्ते में चल रहे थे, लेकिन वहां कंसिस्टेंसी नहीं है। अब देखिए, वो काबुल गए थे, काबुल से अचानक लाहौर पहुंच गए 2015 में, और नवाज शरीफ के साथ इतनी अच्छी मीटिंग हो गई। और उस समय उन्होंने कहा था कि अब तो ऐसा आना जाना चलता ही रहेगा, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखिए, सार्क तो अब इन्हें वो तो कोमा में है। 2014 से सार्क की समिट नहीं हुई है। क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटी है, हम नहीं चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में वो समिट हो। इसके विपरीत आप चाइना की देखिए, चाइना की डिप्लोमेसी,
बहुत कुछ सीखना है उनसे। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, SCO, और इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2016 में, यानी मोदी जी के रहते हुए, हम उसके फुल मेंबर बने, और हमारे साथ साथ पाकिस्तान भी फुल मेंबर बना है। हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बनेगा तो हम नहीं जाएंगे, हम गए हैं। और SCO में अब अफगानिस्तान में एक कॉमन स्ट्रेटेजी हो, इसके लिए एक सोच चल रही है। और आपने प्रारंभिक टिप्पणी में बिल्कुल सही कहा, अभी SCO का समिट होने वाला है, जिसमें वो वर्चुअल हो या फिजिकल हो, मोदी जी भी होंगे, इमरान खान भी होंगे, तो कुछ ना कुछ, शी जिनपिंग तो होंगे ही होंगे, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, और बिल्कुल निकलेगा। क्योंकि हम यदि पुरानी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे इससे हमें उत्तर प्रदेश में हमारे वोट मिलेंगे या नहीं, 2024 में हमारी सरकार फिर से आएगी नहीं, हम यदि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने लगेंगे तो क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को इस सोच से आगे निकलना होगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि मोदी जी एक इच्छा शक्ति बनाए और पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ एक विन विन सॉल्यूशन निकालने का एक इनिशिएटिव ले, तो ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन ऑन अ पीस इनिशिएटिव। क्योंकि भारत के लोग समझेंगे कि कोई ऐसा नेता है जो इतिहास को बदल रहा है। ये बिल्कुल संभव है, और देश के लोगों की मानसिकता को बदलने की बात है, जो काम आप, हम और हम जैसे प्रबुद्धजन मिलकर करें। सुधीर जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और उसके पीछे का जो तर्क है वो भी सही है। मगर क्या होगा ये लोगों की समझ को। आज चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना से हम कई चीजें ऐसी इंपोर्ट करते हैं जिसके बिना यहाँ का कहीं दवाई उद्योग या ऑटो उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, उसको हम चला न सके। फिर भी हम चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करने का कैंपेन भी साथ साथ चलाते हैं। ये आपको अजूबा लगता है या ये फिर एक और मूर्खों की जमात इकट्ठी हुई है जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है इस सब चीजों से और हकीकतों से? क्या लगता है आपको? डॉक्टर व्यास जी, देखिए, राष्ट्रभक्त का सबसे पहला कर्तव्य है राष्ट्रहित को देखना और राष्ट्रहित को बढ़ाना। राष्ट्रहित का किसमें है? राष्ट्रहित, भारत जब समृद्ध होगा, भारत में समृद्धि के साथ साथ जब खुशहाली आएगी, गरीबी चली जाएगी, बेरोजगारी कम होगी, तो यह राष्ट्र के हित में है। और राष्ट्र के हित के लिए हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम के लिए चाइना भी दोषी है, पाकिस्तान भी दोषी है। हमें इनके सामने झुकना नहीं है। वी हैव टू डील विद देम ऑन द बेस ऑफ इक्वालिटी। लेकिन मैं आपसे कहना, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रेड, अब ये गालवान वैली के प्रकरण के बाद पिछले साल 60% हमारा ट्रेड बढ़ा है चाइना के साथ जी। इसका मतलब है कि हम चाइना को आइसोलेट नहीं कर सकते। चाइना आज एक महाशक्ति बनी है इन टेक्नोलॉजी, इन इन्वेस्टमेंट, दे आर फार अहेड। तो क्या हम इसका लाभ उठा नहीं सकते? क्या हम भारत चाइना मिलकर अफगानिस्तान में शांति के लिए प्रयास करें? वो तो तैयार है। वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल सकते हैं कि आप इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। तो इसलिए एक नई सोच चाहिए। मैं कई बार चाइना गया हूं, कई बार पाकिस्तान गया हूं, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हम एक नया इतिहास रचा सकते हैं। और भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान एक नया, क्योंकि आज अफगानिस्तान से अमेरिका तो चला गया, अब वेस्टर्न
डोमिनेशन का जमाना चला गया। अब जो है, दिस इज द ईरा ऑफ एशियाज राइज। एशिया का उदय है, और एशिया के उदय में भारत का उदय होना चाहिए, दक्षिण एशिया का उदय होना चाहिए। और जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे पीड़ित है, प्रताड़ित है, अफगानिस्तान की जनता, उनके साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए। और तालिबान में भी कुछ सद्बुद्धि आए, इसके लिए काम करना चाहिए। और इसीलिए कुछ दिन पहले हमने एक इंडियन फ्रेंड्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से हमने एक अपील जारी की है, और हमने अफगानिस्तान को कहा है, तालिबान को कहा है कि आप ये जो पुरानी सोच थी, कट्टरवाद, फेनेटिज्म, इस्लामिस्ट फेनेटिज्म, इस रास्ते को छोड़िए। आप हिंदू सिख इनको सुरक्षा दीजिए, आप महिलाओं का इज्जत करिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, और सभी टेररिस्ट को अफगानिस्तान की धरती से भगाइए। इससे अफगानिस्तान का एक नया इतिहास बनेगा। और यही मैं, डॉक्टर व्यास जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। मेरे पास ये किताब है, यह किताब खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी, इनकी जीवनी पर है। फ्रंटियर गांधी यानी उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, वो पश्तून थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और अहिंसा के रास्ते पर चलाने के लिए वहां उन्होंने कोशिश की। तो क्या हम गांधी के अनुयायी, वहां सरहद गांधी के अनुयायी, हम सब लोग मिलकर फिर एक बार अफगानिस्तान में शांति, अहिंसा, भाईचारा और विकास, इसके लिए सब मिलकर नहीं काम कर सकते? मेरा तो बिल्कुल विश्वास है कि ये कर सकते हैं, और इसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गुजरात की भूमि, गुजरात ये एक अलग ही है। गुजरात, यदि गुजरात अपने स्वभाव को, अपने चरितार्थ को, अपने इतिहास को समझ पाएगा, तो फिर एक बार पूरे दक्षिण एशिया को यह नेतृत्व दे सकता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद, आपने आना कबूल किया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। काफी अच्छी चर्चाएं हुई। करीब करीब हम समय का तकाजा पूरा करने में थोड़े पीछे रहे हैं, मगर ये चर्चा को समापन की ओर दौड़ने से पहले एक छोटा सा मुद्दा मुझे आपसे पूछना है। आपने कहा कि तालिबान की ये जो सरकार बनेगी और अफगानिस्तान से सब आतंकवादी जुथों को हकाल दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ सिविल वॉर? क्योंकि ये लोग अपनी आसानी से तो वहां से निकलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बखेड़े टंटे करेंगे और कुछ न कुछ धमालबाजी करेंगे। क्या लगता है आपको? डॉक्टर व्यास जी, सिविल वॉर तब होगा जब अफगानिस्तान के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें। लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अफगानी नहीं है। अल कायदा ये अफगान का नहीं है जी, आइसिस ये अफगानिस्तान का नहीं है, लश्कर ए तोयबा ये अफगानिस्तान का नहीं है। तो अफगान के लोग यदि मन बनाए कि हम अपनी धरती को टेररिज्म मुक्त बनाएंगे, तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये बाहर के लोगों को हटाने के लिए वो तो उनके हित में है जी। जहां तक अंदरूनी कलह है जो आज नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और अफगानिस्तान में एक मिली जुली इंक्लूसिव सरकार बने। इसके लिए भारत इनिशिएटिव ले, चाइना इनिशिएटिव ले, रशिया, अमेरिका सब मिलकर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान में एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां बने, और ये हम मिलकर कर सकते हैं। धन्यवाद सुदीन जी, काफी दिलचस्प बातें हो रही है आपसे, मगर समय का तकाजा है कि मुझे इसको पूर्णविराम की ओर ले जाना पड़ेगा।
आपसे और भी 2 बार रूबरू होना है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है गुजरात में। और मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद। रोकेंगे और आपके दर्शकों को फिर एक बार नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। દર્શક મિત્રો, આજની ચર્ચા આપણે તાલિબાન અને અફઘાનિસ્તાનની પરિસ્થિતિ વિશે અહીંયા જ સમાપ્ત કરીશું. મળીશું ફરી એકવાર એક નવા વિષય સાથે, નવી ચર્ચા માટે. ધન્યવાદ.